خدا پلیز پلیز دروازہ بند مت کرنا جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے. کیا لینے آئے ہو ابھی ہم؟ اپنے وہ کھوئی ہوئی محبت جو تمہاری چوکھٹ پر. ولی نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا، لیکن تم فکر مت کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تم جیسی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی میں کس چیز کی کمی لگی اسے جو اس امیر زادے نے تم پر اتنا بڑا داغ. اس لڑکی کے ساتھ تو جو بھی ہوگا سو ہوگا. ارے لڑکے کی بھی ٹانگیں توڑ دوں گا میں. کہ مجھے اپنے خاندان کی عزت زیادہ افضل ہے. چھوٹے صاحب، باہر اینی بی بھی آپ سے ملنے آئی ہیں. وقت نے کیسی چال چل دی میرے ساتھ، مجھے بالکل ہی بے آسرا کر دیا. کتنی خوش میں اس شہر میں آئی تھی اور آج میرے ہاتھ بالکل خالی. اینی کون؟ میں دیکھتا ہوں کون ہے. میں بتاتی ہوں یہ آپ کو کہ کون ہے نہیں. تو یہ تو لیلا کی بیٹی اینی ہے. تم یہاں کیا کرنے آئی؟ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ ایپیسوڈ میں بیا کہتی ہے وقت نے ایک بار پھر سے میرے ساتھ چال چل دی، مجھے بالکل بھی بے آسرا کر دیا. میں کتنی خوش ہوں کہ اس شہر میں آئی تھی اور آج میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. ولی کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ ولی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جیسی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی میں کس چیز کی کمی لگی اسے جو اس امیر زادے نے تم پر اتنا بڑا داغ لگا دیا. دوسری طرف دانیال نیتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پلیز جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے دروازہ بند نہ کرنا. تو وہ کہتی ہے اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تو دانیال کہتا ہے اپنی وہ کھوئی ہوئی محبت جو تمہاری چاخٹ پہ بھول گیا تھا. دوسری طرف گارڈ آ کر دانیال سے کہتا ہے چھوٹے صاحب باہر اینی بی بی آپ سے ملنے آئی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں یہ اینی کون ہے. تو اینی وہاں خود آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بتا دیتی ہوں کہ اینی کون ہے. اینی کو دیکھ کر دانیال کی امی چونک جاتی ہے. دانیال کی امی کہتی ہے یہ تو لیلا کی بیٹی اینی ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو اینی کہتی ہے میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ دانیال تم نے انہیں نہیں بتایا میرے بارے میں؟ دانیال کا ابو کہتا ہے اینی کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن مجھے میرے خاندان کی عزت زیادہ افضل ہے، اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہوں. السلام علیکم. اس ایپیسوڈ میں بیا کہتی ہے وقت نے ایک بار پھر سے میرے ساتھ چال چل دی، مجھے بالکل بھی بے آسرا کر دیا. میں کتنی خوش ہوں کہ اس شہر میں آئی تھی اور آج میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. ولی کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ ولی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جیسی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی میں کس چیز کی کمی لگی اسے جو اس امیر زادے نے تم پر اتنا بڑا داغ لگا دیا. دوسری طرف دانیال نیتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پلیز جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے دروازہ بند نہ کرنا. تو وہ کہتی ہے اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تو دانیال کہتا ہے اپنی وہ کھوئی ہوئی محبت جو تمہاری چاخٹ پہ بھول گیا تھا. دوسری طرف گارڈ آ کر دانیال سے کہتا ہے چھوٹے صاحب باہر اینی بی بی آپ سے ملنے آئی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں یہ اینی کون ہے. تو اینی وہاں خود آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بتا دیتی ہوں کہ اینی کون ہے. اینی کو دیکھ کر دانیال کی امی چونک جاتی ہے. دانیال کی امی کہتی ہے یہ تو لیلا کی بیٹی اینی ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو اینی کہتی ہے میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ دانیال تم نے انہیں نہیں بتایا میرے بارے میں؟ دانیال کا ابو کہتا ہے اینی کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن مجھے میرے خاندان کی عزت زیادہ افضل ہے، اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہوں. السلام علیکم. اس ایپیسوڈ میں بیا کہتی ہے وقت نے ایک بار پھر سے میرے ساتھ چال چل دی، مجھے بالکل بھی بے آسرا کر دیا. میں کتنی خوش ہوں کہ اس شہر میں آئی تھی اور آج میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. ولی کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ ولی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جیسی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی میں کس چیز کی کمی لگی اسے جو اس امیر زادے نے تم پر اتنا بڑا داغ لگا دیا.
दूसरी तरफ दानियाल निदा के पास जाता है और कहता है, प्लीज जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए दरवाजा बंद ना करना। तो वो कहती है, अब क्या लेने आए हो यहाँ? तो दानियाल कहता है, अपनी वो खोई हुई मोहब्बत जो तुम्हारी चौखट पे भूल गया था। दूसरी तरफ गार्ड आकर दानियाल से कहता है, छोटी साहब बाहर एनी बीबी आपसे मिलने आई है। तो वो कहता है, अच्छा मैं देखता हूँ ये एनी कौन है। तो एनी वहाँ खुद आ जाती है और कहती है, मैं बता देती हूँ कि एनी कौन है। एनी को देखकर दानियाल की अम्मी चौंक जाती है। दानियाल की अम्मी कहती है, ये तो लैला की बेटी एनी है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो एनी कहती है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? दानियाल, तुमने इन्हें नहीं बताया मेरे बारे में? दानियाल का अब्बू कहता है, एनी के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे मेरे खानदान की इज्जत ज्यादा अफजल है, इसके लिए मैं अपने बेटे की टांगें भी तोड़ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में बिया कहती है, वक्त ने एक बार फिर से मेरे साथ चाल चल दी, मुझे बिल्कुल भी बेआसरा कर दिया। मैं कितनी खुश हूँ कि इस शहर में आई थी और आज मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। वली की वालिदा उससे कहती है कि वली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम जैसी प्यारी और सुलझी हुई लड़की में किस चीज की कमी लगी उसे, जो अमीर ज़ादे ने तुम पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। दूसरी तरफ दानियाल निदा के पास जाता है और कहता है, प्लीज जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए दरवाजा बंद ना करना। तो वो कहती है, अब क्या लेने आए हो यहाँ? तो दानियाल कहता है, अपनी वो खोई हुई मोहब्बत जो तुम्हारी चौखट पे भूल गया था। दूसरी तरफ गार्ड आकर दानियाल से कहता है, छोटे साहब बाहर एनी बीबी आपसे मिलने आई है। तो वो कहता है, अच्छा मैं देखता हूँ ये एनी कौन है। तो एनी वहाँ खुद आ जाती है और कहती है, मैं बता देती हूँ कि एनी कौन है। एनी को देखकर दानियाल की अम्मी चौंक जाती है। दानियाल की अम्मी कहती है, ये तो लैला की बेटी एनी है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो एनी कहती है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? दानियाल, तुमने इन्हें नहीं बताया मेरे बारे में? दानियाल का अब्बू कहता है, एनी के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे मेरे खानदान की इज्जत ज्यादा अफजल है, इसके लिए मैं अपने बेटे की टांगें भी तोड़ सकता हूँ। तो गुस्से से बिखरा हुआ हराम पीने में मसरूफ था। आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी, जैसे अभी लहू झलक जाएगा। वो गिलास के गिलास अपने अंदर उंडेल रहा था, मगर बेसूद। चटाख एक फिर बाबूजी के थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसे लगा उसका रुखसार जल उठा है। उसने जब से मिठाइयाँ बेचने आंखें बंद कर ली। उसने चिल्लाते हुए गिलास दीवार से दे मारा, जो कि फौरन ही चिनाक की आवाज से टुकड़ों में तकसीम हो गया। अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बाबूजी आपने मेरे साथ। पूरे गांव के सामने आपको मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या कसूर था मेरा जिसकी ये सजा आपने मुझे दी? क्यों? मुनीर गुस्से से पागल होता दौड़ा। उस वक्त वो कोई जख्मी शेर लग रहा था, तो ये भी भूल चुका था कि एक नाजुक वजूद में अब उससे जुड़ चुका है, जो अब उसकी जिम्मेदारी है। वो वहीं सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता नशे की वजह से ही ना जाने कब उसकी आंख लगी और उसे भी पता नहीं चला। वो मुसलसल गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि खुल ही नहीं रहा था। उसे अपनी किस्मत पे बेतहाशा रोना आया। एक तो सुबह से भूखी थी और फिर दम इतना कुछ हो गया कि उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। अब तो उसमें बिल्कुल सकत नहीं थी कि चीख कर ही किसी को बुला सकती। रो रो कर आंखें भी सूज चुकी थी। गाड़ी मुकम्मल बंद थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, मगर वो सितमगर तो आते ही उसे उसकी औकात दिखाकर न जाने कहाँ जाया सोया था। वो निढाल होती वहीं सीट से पुश्त पर टिका कर बैठ गई और किस्मत इस सितम ज़रीफ़ी पर रोते मुस्कुराते हल्के से आंखें बूंद गई। इसने उसे एक पताव से निकाल कर दूसरे में डाल दिया था, मगर सच तो सिर्फ खुदा की ज़ात ही जानती थी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में। वो जहाँ मिला उसे देखकर न नजर मिली न जुबान मिली, यूं ही सर झुकाकर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक सितम थे, मगर आज हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। उस वक्त लॉन्ज में सर हाथों में थामे बैठा था, जो कि बहुत भारी हो रहा था। इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो अपने सामने बड़ी हराम बोतल देखकर उसे एक ही दम घिन आने लगी, जो कि आधे से थोड़ी कम थी। उसने हैरानगी से इर्द गिर्द जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता सब याद आता गया।
मुनीर ने लंबा सांस खींचकर खुद को पुरसुकून किया और एक चोर नजर बोतल पर डालता उठकर ऊपर कमरे में जाने लगा। कमरे के बाहर खड़ा वो कश्मकश में था कि अंदर जाए या न जाने वो किस हाल में होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। एकदम से दिल बेचैन होने लगा। तो मैं क्या करूं, खाए चाहे ना खाए। दिमाग ने ऐसा उकसाया, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हालात रहे हों। मनवेरा अपने से जुड़े इंसानों का ख्याल अच्छे से रखता है। दिल ने फौरन से हिसाब बराबर किया। उसने घबरा कर फौरन कमरे का दरवाज़ा खोला और कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, मगर पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद भी उसे वो कहीं नजर न आई। तो वो शुरू की तरफ बढ़ पर मुसलसल खटखटाने के बाद भी जवाब न पाकर उसने दरवाज़ा खोला तो वो कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे कमरे चेक कर लिए, मगर वो कहीं होती तो नजर आती ना। अब सही मानों में उसकी जान हाथों में आई थी। लाउंज में आते उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसके जहन में झमका हुआ। उसने तड़प कर कहा, बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। उसने बाल मुट्ठियों में जकड़ कर वापस भागा और जल्दी से चाबियां लाते गाड़ी का लॉक खोला तो वो वहीं सीट की एक तरफ झुकी हुई थी। उसने जल्दी से उसे बाजू में भरा और तेज कदम उठाता अपने कमरे में लॉक कर उसे बेड पर लिटाया और उसकी नब्ज चेक करने लगा, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसे खुद पर बेताशा गुस्सा आया कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जो उसकी मौजूदगी की फरामोश कर बैठा था, जिसे मासूम लड़की मौत के मुंह में जा पहुंची थी। जन्नत उठो प्लीज, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया यार। गुस्से में दरवाज़ा बंद किया था, पता नहीं कैसे लॉक हो गया। और उसके हाथ थाम कर अपने हाथों से रगड़ते उसे होश लाने की कोशिश करता, उसे सफाइयाँ पेश करता जो वैसे बेहोश सद पड़ी थी। मनवीर ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे वो हल्का सा कुसमुसाई और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अपने सामने की उसे देखकर फौरन आंखें बंद कर गई, जिससे मनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सफेद रंग, लंबी तिरछी पलकें, कटावदार होंठ, थोड़ी पर पड़ता गड़ा और भरा भरा जिस्म, वो जिस हुस्न का पैकर थी जो किसी को भी बहका सकता था। मनवीर ने आहिस्ता से उंगली उसकी घनी पलकों पर फेरी, जो कि लरज रही थी। जन्नत ने हैरानगी से आंखें खोलकर उसे देखा, जिसकी नजरें बहुत ही टपकी हुई थी। माहौल में छाई मानो ख्याल खामोशी और अपने ऊपर झुके उस लंबे चौड़े वजूद को देखकर जन्नत को एकदम घबराहट सी होने लगी। उसने नामहसूस तरीके से हलक तर्क किया, जो कि मुकाबले ज़ेरे निकाहों से बचा ना रह सका। पीछे हिंटी डॉक्टर साहब। जन्नत ने खुश्क होते लबों पर जबीन फेरते हुए मुश्किल हलखड़ाती सी जबान में कहा, दिल जैसे बाहर आने को था, मगर मुकाबिल तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजरें तो जन्नत के चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जिससे उसकी जान पे बिन आई थी। अब जन्नत ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मनवीर ने झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। और जो पहले से घबरा रही थी, होंठ पे उसका लमस महसूस करती फड़फड़ा कर रह गई और बेसाख्ता हाथ उसके कंधे पर रखा, जो मदहोश सा उसकी सांसों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो जो उसके नरम गरम से होंठों को कब्जे में लिए मदहोश था, उसकी सांसों की मध्यम पड़ती रफ्तार से होश में आया और आहिस्ता से उसे अलग हुआ, मगर चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि मुकाबिल तो अभी तक अपनी सांसों को संभालने की जिदोजहद में हलकान था। मनवीर के लब मुतबस्सम हुए उसकी हालत देखकर। वो चेहरा जो कुछ देर पहले जर्दी माइल था, अब गुलाबी हुआ पड़ा था। जन्नत से अपनी हालत संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि वो पास बैठा ढीठों की तरह उसे घूरने में मसरूफ था, जैसे कोई आम बात हो या कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ रात वो उसे अकेले मरने के लिए छोड़ आया था, और अब सुबह ही सुबह ऐसी अनायत पर जन्नत का दिल एकदम से उदास हो गया। रात का उसका सलूक याद करते तो उसने नागवारी से करवट बदल ली, जो कि मनवीर भी नोट कर चुका था। इसलिए लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया और नज़र उसकी पुश्त पर डाली, जहाँ गर्दन से थोड़ा दूर कंधे की तरफ का एक काला तिल था, जो उसकी गोरी रंगत पर दमक रहा था। मनवीर ने फौरन नजरें चुराई, वरना वो फिर से गुस्ताखी कर बैठता। जन्नत उठो, फ्रेश होकर आओ और नाश्ता करो, मनवीर ने थोड़ा रोबा से कहा। जन्नत जानता था क्योंकि हरकत उसने की है। उसके बाद वो मुंह फैलाकर बैठ गई, इसलिए थोड़ा मसनूई गुस्से से बोला। जन्नत, जो उसकी माफ़ी की मुंतज़िर थी, अचानक उसका हुक्मी लहजा सुनकर उसका दिल मायूस हो गया। दिल क्या बोल दे, नहीं खाना कुछ, मगर उससे कुछ बैद नहीं था।
کہ سچ میں اسے بھوکا چھوڑ جائے. پیٹ میں تو پہلے ہی درد تھا بھوک سے، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف سے اتر کر وہ شرم چلی گئی. اب کے دروازہ بند ہونے کی آواز سے وہ بھی اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے آ گیا، مگر دل میں الگ ہی جنگ چھڑی تھی. وہ سانسوں کا الجھاؤ اور نرم سا لمس ابھی بھی اس کی سوچیں بھٹکا رہا تھا. وہ دل پہ جبر کرتا سر جھک کر اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں مصروف ہو گیا. یار ہماری یونیورسٹی تو اس روٹ پر ہے نا. روحاب جو نوٹس پر سر جھکائے آج کا لیسن دیکھ رہی تھی، رکشے کو غلط موڑ کا کاٹتے دیکھ کر حیرانگی سے اپنے ساتھ بیٹھی دوست کو دیکھا جو شاید اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھی. مسکرا کر وہ وہاں کی دیکھا جو یونیورسٹی کو دور جاتے دیکھ رہی. تو غصے سے بفرا ہوا حرام پینے میں مصروف تھا. آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی جیسے ابھی لہو جھلک جائے گا. وہ گلاس کے گلاس اپنے اندر ڈیل رہا تھا مگر بے سود. چٹاخ ایک دفعہ پھر باؤجی کے تھپڑ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اسے لگا اس کا رخسار جل اٹھا ہے. اس نے ضبط سے مٹھائیاں بیچنے آنکھیں بند کر لیں. اس نے چلاتے ہوئے گلاس دیوار سے دے مارا جو کہ فوراً ہی چناک کی آواز سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا باؤجی آپ نے میرے ساتھ. پورے گاؤں کے سامنے آپ کو مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. کیا قصور تھا میرا جس کی یہ سزا آپ نے مجھے دی؟ کیوں؟ منیر غصے سے پاگل ہوتا دھاڑا. اس وقت وہ کوئی زخمی شیر لگ رہا تھا جو یہ بھی بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود میں اب اس سے جڑ چکا ہے جو اب اس کی ذمہ داری ہے. وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ نشے کی وجہ سے ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے بھی پتہ نہیں چلا. وہ مسلسل گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تھا کہ کھل ہی نہیں رہا تھا. اسے اپنی قسمت پہ بے تحاشا رونا آیا. ایک تو صبح سے بھوکی تھی اور پھر دم اتنا کچھ ہو گیا کہ اس کی زندگی بدل کر رہ گئی. اب تو اس میں بالکل سکت نہیں تھی کہ چیخ کر ہی کسی کو بلا سکتی. رو رو کر آنکھیں بھی سوج چکی تھی. گاڑی مکمل بند تھی جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی مگر وہ ستمگر تو آتے ہی اسے اس کی اوقات دکھا کر نہ جانے کہاں جایا سویا تھا. وہ نڈھال ہوتی وہیں سیٹ سے پشت پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور قسمت اس ستم ظریفی پر روتے مسکراتے ہلکے سے آنکھیں بوند گئی. جس نے اسے ایک عذاب سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا تھا مگر سچ تو صرف خدا کی ذات ہی جانتی تھی. کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے. یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے. کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں. وہ جہاں ملا اسے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زباں ملی. یوں سر جھکا کر گزر گئے. مجھے یاد ہے کبھی ایک ستم تھے مگر آج ہم جدا جدا. وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. اس وقت لاؤنج میں سر ہاتھوں میں تامے بیٹھا تھا جو کہ بہت بھاری ہو رہا تھا. ارد گرد نظر دوڑائے تو اپنے سامنے بڑی حرام بوتل دیکھ کر اسے ایک ہی دم گھن آنے لگی جو کہ آدھے سے تھوڑی کم تھی. اس نے حیرانگی سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور آہستہ سے سب یادات آتا گیا. منیر نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور ایک چور نظر بوتل پر ڈالتا اٹھ کر اوپر کمرے میں جانے لگا. کمرے کے باہر کھڑا وہ کشمکش میں تھا کہ اندر جائے یا نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں. ایک دم سے دل بے چین ہونے لگا. تو میں کیا کروں، کھائے چاہے نہ کھائے. دماغ نے ایسا اکسایا اب وہ میری ذمہ داری ہے چاہے جو بھی حالات رہے ہوں. من ویرا اپنے سے جڑے انسانوں کا خیال اچھے سے رکھتا ہے. دل نے فوراً سے حساب برابر کیا. اس نے گھبرا کر فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور قدم اندر کی طرف بڑھایا مگر پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد بھی اسے وہ کہیں نظر نہ آئی. تو وہ اشروں کی طرف بڑھ پر مسلسل کھٹکھٹانے کے بعد بھی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ اس نے سارے کمرے چیک کر لیے مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی نہ. اب صحیح معنوں میں اس کی جان ہاتھوں میں آئی تھی. لاؤنج میں آتے اس نے دماغ پر زور دیا تو اس کے ذہن میں جھمکا ہوا. اس نے تڑپ کر کہا باہر کی طرف دوڑ لگا دی. جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا. اس نے بال مٹھیوں میں
लेकर घर वापस भागा और जल्दी से चाबियां लाते गाड़ी का लॉक खोला तो वो वहीं सीट की एक तरफ झुकी हुई थी। उसने जल्दी से उसे बाजू में भरा और तेज कदम उठाता अपने कमरे में ला कर उसे बेड पर लिटाया और उसकी नब्ज चेक करने लगा, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसे खुद पर बेताशा गुस्सा आया कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जो उसकी मौजूदगी की फरामोश कर बैठा था, जिसे मासूम लड़की मौत के मुंह में जा पहुंची थी। जन्नत उठो प्लीज, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया यार। गुस्से में दरवाज़ा बंद किया था, पता नहीं कैसे लॉक हो गया। और उसके हाथ थाम कर अपने हाथों से रगड़ते उसे होश लाने की कोशिश करता, उसे सफाइयाँ पेश करता जो वैसे बेहोश सद पड़ी थी। मनवीर ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी, जिससे वो हल्का सा कुसमुसाई और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अपने सामने की उसे देखकर फौरन आंखें बंद कर गई, जिससे मनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सफ़ेद रंग, लंबी तिरछी पलकें, कटावदार होंठ, थोड़ी पर पड़ता गड़ा और भरा भरा जिस्म, वो जिस हुस्न का पैकर थी जो किसी को भी बहका सकता था। मनवीर ने आहिस्ता से उंगली उसकी घनी पलकों पर फेरी, जो कि लदर रही थी। जन्नत ने हैरानगी से आंखें खोलकर उसे देखा, जिसकी नजरें बहुत ही टपकी हुई थीं। माहौल में छाई मानो खामोशी और अपने ऊपर झुके उस लंबे चौड़े वजूद को देखकर जन्नत को एकदम घबराहट सी होने लगी। उसने नामहसूस तरीके से हलक तर्क किया, जो कि मुकाबिले ज़ेरे निकाहों से बचा ना रह सका। पीछे हिंटी डॉक्टर साहब, जन्नत ने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरते हुए मुश्किल हड़खड़ाती सी ज़बान में कहा। दिल जैसे बाहर आने को था, मगर मुकाबिल तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें तो जन्नत के चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जिससे उसकी जान पे बिन आई थी। अब जन्नत ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मनवीर ने झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो जो पहले से घबरा रही थी, होंठ पे उसका लमस महसूस करती फड़फड़ा कर रह गई और बेसाख्ता हाथ उसके कंधे पर रखा, जो मदहोश सा उसकी सांसों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो जो उसके नरम गरम से होंठों को कब्जे में लिए मदहोश था, उसकी सांसों की मध्यम पड़ती रफ्तार से होश में आया और आहिस्ता से उसे अलग हुआ, मगर चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि मुकाबिल तो अभी तक अपनी सांसों को संभालने की जिदोजहद में हलकान था। मनवीर के लब मुतबस्सम हुए उसकी हालत देखकर। वो चेहरा जो कुछ देर पहले जर्दी माइल था, अब गुलाबी हुआ पड़ा था। जन्नत से अपनी हालत संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि वो पास बैठा ढीठों की तरह उसे घूरने में मसरूफ था, जैसे कोई आम बात हो या कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ रात वो उसे अकेले मरने के लिए छोड़ आया था, और अब सुबह ही सुबह ऐसी अनायत पर जन्नत का दिल एकदम से उदास हो गया। रात का उसका सलूक याद करते तो उसने नागवारी से करवट बदल ली, जो कि मनवीर भी नोट कर चुका था। इसलिए लंबा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और नज़र उसकी पुश्त पर डाली, जहाँ गर्दन से थोड़ा दूर कंधे की तरफ का एक काला तिल था, जो उसकी गोरी रंगत पर दमक रहा था। मनवीर ने फौरन नजरें चुराई, वरना वो फिर से गुस्ताखी कर बैठता। जन्नत उठो, फ्रेश होकर आओ और नाश्ता करो, मनवीर ने थोड़ा रोबा से कहा। जन्नत जानता था जो कि हरकत उसने की है, उसके बाद वो मुंह फैलाकर बैठ गई, इसलिए थोड़ा मसनूई गुस्से से बोला। जन्नत, जो उसकी माफ़ी की मुंतज़िर थी, अचानक उसका हुक्मिया लहजा सुनकर उसका दिल मायूस हो गया। दिल क्या बोल दे, नहीं खाना कुछ, मगर उससे कुछ बाइद नहीं था कि सच में उसे भूखा छोड़ जाए। पेट में तो पहले ही दर्द था भूख से, इसलिए खामोशी से बेड के दूसरी तरफ से उतर कर वो शर्म में चली गई। जबकि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वो भी उठकर बालों में हाथ फेरता नीचे आ गया, मगर दिल में अलग ही जंग छिड़ी थी। वो सांसों का उलझाव और नरम सा लमस अभी भी उसकी सोचें भटका रहा था। वो दिल पे जबर करता सर झुककर उसके लिए नाश्ता बनाने किचन में मसरूफ हो गया। यार, हमारी यूनिवर्सिटी तो उस रूट पर है ना,
रोहाब जो नोटिस पर सर झुकाए आज का लेसन देख रही थी, रक्शे को गलत मोड़ का काटते देखकर हैरानगी से अपने साथ बैठी दोस्त को देखा जो शायद उस सवाल के तो गुस्से से बिखरा हुआ हराम पीने में मसरूफ था। आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी, जैसे अभी लहू झलक जाएगा। वो गिलास के गिलास अपने अंदर उंडेल रहा था, मगर बेसूद चटाक एक फिर बाबूजी के थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंजी तो उसे लगा उसका रुखसार जल उठा है। उसने जब से मिठाइयाँ बेचने आंखें बंद कर ली। उसने चिल्लाते हुए गिलास दीवार से दे मारा, जो कि फौरन ही चिनाक की आवाज से टुकड़ों में तकसीम हो गया। अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बाबूजी आपने मेरे साथ। पूरे गांव के सामने आपको मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या कसूर था मेरा जिसकी ये सजा आपने मुझे दी? क्यों? मुनीर गुस्से से पागल होता धाड़ा। उस वक्त वो कोई जख्मी शेर लग रहा था जो ये भी भूल चुका था कि एक नाजुक वजूद में अब उससे जुड़ चुका है, जो अब उसकी जिम्मेदारी है। वो वहीं सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता नशे की वजह से ही ना जाने कब उसकी आंख लग गई और उसे भी पता नहीं चला। वो मुसलसल गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि खुल ही नहीं रहा था। उसे अपनी किस्मत पे बेतहाशा रोना आया। एक तो सुबह से भूखी थी और फिर दम इतना कुछ हो गया कि उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। अब तो उसमें बिल्कुल सकत नहीं थी कि चीख कर ही किसी को बुला सकती। रो रो कर आंखें भी सूज चुकी थी। गाड़ी मुकम्मल बंद थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, मगर वो सितमगर तो आते ही उसे उसकी औकात दिखाकर न जाने कहाँ जा सोया था। वो निढाल होती वहीं सीट से पुश्त पर टिका कर बैठ गई और किस्मत की सितम तरीफी पर रोते मुस्कुराते हल्के से आंखें बूंद गई। इसने उसे एक पताव से निकाल कर दूसरे में डाल दिया था, मगर सच तो सिर्फ खुदा की जात ही जानती थी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में। वो जहां मिला उसे देखकर न नजर मिली न जुबान मिली, यूं सर झुकाकर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक सितम थे, मगर आज हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। उस वक्त लॉन्ज में सर हाथों में तामे बैठा था, जो कि बहुत भारी हो रहा था। इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो अपने सामने बड़ी हराम बोतल देखकर उसे एक ही दम घिन आने लगी, जो कि आधे से थोड़ी कम थी। उसने हैरानगी से इर्द गिर्द का जायजा लिया और आहिस्ता से सब याद आता गया। मुनीर ने लंबा सांस खींचकर खुद को पुरसुकून किया और एक चोर नजर बोतल पर डालता उठकर ऊपर कमरे में जाने लगा। कमरे के बाहर खड़ा वो कश्मकश में था कि अंदर जाए या ना जाने वो किस हाल में होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। एकदम से दिल बेचैन होने लगा। तो मैं क्या करूं, खाए चाहे ना खाए। दिमाग ने ऐसा उकसाया, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हालात रहे हों। मन वेरा अपने से जुड़े इंसानों का ख्याल अच्छे से रखता है। दिल ने फौरन से हिसाब बराबर किया। उसने घबरा कर फौरन कमरे का दरवाजा खोला और कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, मगर पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद भी उसे वो कहीं नजर न आई। तो वो शुरू की तरफ बढ़ पर मुसलसल खटखटाने के बाद भी जवाब ना पाकर उसने दरवाजा खोला तो वो कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे कमरे चेक कर लिए, मगर वो कहीं होती तो नजर आती ना। अब से ही मानों में उसकी जान हाथों में आई थी। लाउंज में आते उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसके जहन में झमका हुआ। उसने तड़प कर कहा, बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो लाक था। उसने बाल मुट्ठियों में पकड़ कर वापस भागा और जल्दी से चाबियां लाते गाड़ी का लॉक खोला तो वो वहीं सीट की एक तरफ झुकी हुई थी। उसने जल्दी से उसे बाथरूम में भरा और तेज कदम उठाता अपने कमरे में ला कर उसे बेड पर लिटाया और उसकी नब्ज चेक करने लगा, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसे खुद पर बेताशा गुस्सा आया कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जो उसकी मौजूदगी की फरामोश कर बैठा था। जिसे मासूम लड़की मौत के मुंह में जा पहुंची थी। जन्नत उठो प्लीज, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया यार। गुस्से में दरवाजा बंद किया था, पता नहीं कैसे लॉक हो गया। तो उसके हाथ थाम कर अपने हाथों से रगड़ते उसे होश लाने की कोशिश करता, उसे सफाइयाँ पेश करता जो वैसे बेहोश सद पड़ी थी। मनवीर ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी, जिससे वो हल्का सा कुसमुसाई और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अपने सामने की उसे देखकर फौरन आंखें बंद कर गई, जिससे मनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सफेद रंग, लंबी तिरछी पलकें, कटावदार होंठ, थोड़ी पर पड़ता गड़ा और भरा भरा जिस्म, वो जिस वोसन का पैकर थी जो किसी को भी बहका सकता था। मनवीर ने आहिस्ता से उंगली उसकी घनी पलकों पर फेरी, जो कि लरज रही थी। जन्नत ने हैरानगी से आंखें खोलकर उसे देखा, जिसकी नजरें बहुत ही टपकी हुई थीं। माहौल में छाई मानो ख्याल खामोशी और अपने ऊपर झुके उस लंबे चौड़े वजूद को देखकर जन्नत को एकदम घबराहट सी होने लगी। उसने ना महसूस तरीके से हलक तर्क किया,
जो कि मुकाबले ज़ेर निकाहों से बचा ना रह सका। फिर पीछे हिंटी डॉक्टर साहब। जन्नत ने खुश्क होते लबों पर ज़बीन फेरते बमुश्किल हड़खड़ाती सी ज़बान में कहा, दिल जैसे बाहर आने को था, मगर मुकाबिल तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें तो जन्नत के चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जिससे उसकी जान पे बिन आई थी। अब जन्नत ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मनवीर ने झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो जो पहले से घबरा रही थी, होंठ पे उसका लमस महसूस करती फड़फड़ा कर रह गई और बेसाख्ता हाथ उसके कंधे पर रखा, जो मदहोश सा उसकी सांसों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो जो उसके नरम गरम से होंठों को कब्जे में लिए मदहोश था, उसकी सांसों की मध्यम पड़ती रफ्तार से होश में आया और आहिस्ता से उसे अलग हुआ, मगर चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि मुकाबिल तो अभी तक अपनी सांसों को संभालने की जिदोजहद में हलकान था। मनवीर के लब मुतबस्सम हुए उसकी हालत देखकर। वो चेहरा जो कुछ देर पहले जर्दी माइल था, अब गुलाबी हुआ पड़ा था। जन्नत से अपनी हालत संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि वो पास बैठा ढीठों की तरह उसे घूरने में मसरूफ था, जैसे कोई आम बात हो या कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ रात वो उसे अकेले मरने के लिए छोड़ आया था, और अब सुबह ही सुबह ऐसी अनायतों पर जन्नत का दिल एकदम से उदास हो गया। रात का उसका सलूक याद करते तो उसने नागवारी से करवट बदल ली, जो कि मनवीर भी नोट कर चुका था। इसलिए लंबा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और नज़र उसकी पुश्त पर डाली, जहाँ गर्दन से थोड़ा दूर कंधे की तरफ का एक काला तिल था, जो उसकी पूरी रंगत पर दमक रहा था। मनवीर ने फौरन नजरें चुराई, वरना वो फिर से गुस्ताखी कर बैठता। जन्नत उठो, फ्रेश होकर आओ और नाश्ता करो, मनवीर ने थोड़ा रोबा से कहा। जन्नत जानता था जो कि हरकत उसने की है, उसके बाद वो मुंह फैलाकर बैठ गई, इसलिए थोड़ा मसनूई गुस्से से बोला। जन्नत, जो उसकी माफ़ी की मुंतज़िर थी, अचानक उसका हुक्मिया लहजा सुनकर उसका दिल मायूस हो गया। दिल क्या बोल दे, नहीं खाना कुछ, मगर उससे कुछ बाइद नहीं था कि सच में उसे भूखा छोड़ जाए। पेट में तो पहले ही दर्द था भूख से, इसलिए खामोशी से बेड के दूसरी तरफ से उतर कर वो शर्म में चली गई। जबकि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वो भी उठकर बालों में हाथ फेंकता नीचे आ गया, मगर दिल में अलग ही तो गुस्से से बिखरा हुआ हराम पीने में मसरूफ था। आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी, जैसे अभी लहू झलक जाएगा। वो गिलास के गिलास अपने अंदर उंडेल रहा था, मगर बेसूद चटाख। एक दफा फिर बाबूजी के थप्पड़ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसे लगा उसका रुखसार जल उठा है। उसने जब से मिठाइयाँ बेचने आंखें बंद कर ली। उसने चिल्लाते हुए गिलास दीवार से दे मारा, जो कि फौरन ही चिनाक की आवाज़ से टुकड़ों में तकसीम हो गया। अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बाबूजी आपने मेरे साथ। पूरे गांव के सामने आपको मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या कसूर था मेरा जिसकी ये सजा आपने मुझे दी? क्यों? मुनीर गुस्से से पागल होता धाड़ा। उस वक्त वो कोई जख्मी शेर लग रहा था, तो ये भी भूल चुका था कि एक नाजुक वजूद में अब उससे जुड़ चुका है, जो अब उसकी जिम्मेदारी है। वो वहीं सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता नशे की वजह से ही ना जाने कब उसकी आंख लग गई और उसे भी पता नहीं चला। वो मुसलसल गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि खुल ही नहीं रहा था। उसे अपनी किस्मत पे बेतहाशा रोना आया। एक तो सुबह से भूखी थी और फिर दम इतना कुछ हो गया कि उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। अब तो उसमें बिल्कुल सकत नहीं थी कि चीख कर ही किसी को बुला सकती। रो रो कर आंखें भी सूज चुकी थी। गाड़ी मुकम्मल बंद थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, मगर वो सितमगर तो आते ही उसे उसकी औकात दिखाकर न जाने कहाँ जाया सोया था। वो निढाल होती वहीं सीट से पुश्त पर टिका कर बैठ गई और किस्मत इस सितम ज़रीफ़ी पर रोते मुस्कुराते हल्के से आंखें बूंद गई। इसने उसे एक अदाव से निकाल कर दूसरे में डाल दिया था, मगर सच तो सिर्फ खुदा की ज़ात ही जानती थी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में। वो जहां मिला उसे देखकर न नजर मिली न जुबान मिली, यूं सर झुकाकर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक सितम थे, मगर आज हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। उस वक्त लॉन्ज में सर हाथों में थामे बैठा था, जो कि बहुत भारी हो रहा था। इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो अपने सामने बड़ी हराम बोतल देखकर उसे एक ही दम घिन आने लगी।
جو کہ آدھے سے تھوڑی کم تھی. اس نے حیرانگی سے اردو کا جائزہ لیا اور آہستہ سے سب یاد آتا گیا. منیر نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور ایک چور نظر بوتل پر ڈالتا اٹھ کر اوپر کمرے میں جانے لگا. کمرے کے باہر کھڑا وہ کشمکش میں تھا کہ اندر جائے یا نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی, کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں. ایک دم سے دل بے چین ہونے لگا. تو میں کیا کروں, کھائے چاہے نہ کھائے. دماغ نے ایسا اکسایا, اب وہ میری ذمہ داری ہے, چاہے جو بھی حالات رہے ہوں. منویرا اپنے سے جڑے انسانوں کا خیال اچھے سے رکھتا ہے. دل نے فوراً سے حساب برابر کیا. اس نے گھبرا کر فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور قدم اندر کی طرف بڑھایا, مگر پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد بھی اسے وہ کہیں نظر نہ آئی. تو وہ شروع کی طرف بڑھ پر مسلسل کھٹکھٹانے کے بعد بھی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ اس نے سارے کمرے چیک کر لیے, مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی نہ. اب سے ہی مانوں میں اس کی جان ہاتھوں میں آئی تھی. لاؤنج میں آتے اس نے دماغ پر زور دیا تو اس کے ذہن میں جھمکا ہوا. اس نے تڑپ کر کہا, باہر کی طرف دوڑ لگا دی. جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا, مگر وہ لاک تھا. اس نے بال مٹھیوں میں جکڑ کر واپس بھاگا اور جلدی سے چابیاں لاتے گاڑی کا لاک کھولا تو وہ وہیں سیٹ کی ایک طرف جھکی ہوئی تھی. اس نے جلدی سے اسے بازو میں بھرا اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا, جو کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا کہ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے, جو اس کی موجودگی کی فراموش کر بیٹھا تھا, جس سے وہ معصوم لڑکی موت کے منہ میں جان پہنچی تھی. جنت اٹھو پلیز, مجھے معاف کر دو, لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا یار. غصے میں دروازہ بند کیا تھا, پتہ نہیں کیسے لاک ہو گیا. اور اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں سے رگڑتے اسے ہوش لانے کی کوشش کرتا, اسے صفائیاں پیش کرتا جو ویسے بے ہوش سد پڑی تھی. منویر نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے, جس سے وہ ہلکا سا کسمسائی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی. اپنے سامنے کی اسے دیکھ کر فوراً آنکھیں بند کر گئی, جس سے منویرے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. سفید رنگ, لمبی ترچھی پلکیں, کٹاؤ دار ہونٹ, تھوڑی پر پڑتا گڑھا اور بھرا بھرا جسم, وہ جس حسن کا پیکر تھی جو کسی کو بھی بہکا سکتا تھا. منویر نے آہستہ سے انگلی اس کی گھنی پلکوں پر پھیری جو کہ لرز رہی تھیں. جنت نے حیرانگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا, جس کی نظریں بہت ہی ٹپکی ہوئی تھیں. ماحول میں چھائی مانو خاموشی, اور اپنے اوپر جھکے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر جنت کو ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی. اس نے نامحسوس طریقے سے حلق ترک کیا, جو کہ مقابلی زیر نکاحوں سے بچا نہ رہ سکا. پیچھے ہنٹیں ڈاکٹر صاحب. جنت نے خشک ہوتے لبوں پر زبین پھیرتے بمشکل لڑکھڑاتی سی زبان میں کہا, دل جیسے باہر آنے کو تھا, مگر مقابل تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا. اس کی نظریں تو جنت کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں, جس سے اس کی جان پہ بن آئی تھی. اب جنت نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ